السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام انتما ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی آپ سے 40 کی تعداد مکمل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرماتے، الہ العالمین عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ حضور نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و وقعت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تبلیغ جو ہے دور دور تک پھیل رہی ہے، لوگ ایمان لے کر کے آ رہے ہیں، مکہ کے اندر، مدینے کے اندر، مدینے کے باہر، دور دراز ملک میں اسلام پھیل رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، تو اب لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے جتن کر کے دیکھ لیے، کسی بھی طرح سے اسلام کا چراغ نہیں بجھایا جا سکتا، ایسا کرو کہ صاحب اسلام کو ہی قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہا ویسے تو ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک کام کریں کہ حضور کو ہی قتل کر دیا جائے، محمد کو ہی قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ میٹنگ ہوئی، جب ہوئی تمام لوگوں نے کہا کہ کون قتل کرے گا، کون قتل کرے گا، کون قتل کرے گا۔ حضرت عمر اٹھے اور تلوار لٹکائی، اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے قتل کر دوں گا، میں کام یہ کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی یہ کام کر سکتے ہو، تم بہادر ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، آپ اٹھے، تلوار لٹکائی اور آپ نکل پڑے۔ راستے میں جا رہے ہیں تلوار لے کر کے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ جو کہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی ایمان آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا، راستے میں ملے اور کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں اسلام کے چراغ کو مٹانے جا رہا ہوں، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم پھر خاندان قریش سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم پھر ان سے لڑ سکو گے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو بھی ایمان لے کر کے آ گیا ہے، نہ پہلے تجھ کو ہی نپٹ لوں، پہلے میں تجھ کو ہی دیکھ لوں۔ تلوار نکال کر کے آپ ان کے لیے شہید کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جیسے ہی چلے، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ نے کہا کہ عمر مجھ سے تو بعد میں لڑنا، پہلے جا کر کے اپنی خبر لے، اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔
अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो गुस्से में आप जो है और ज्यादा हो गए और घर की तरफ रवाना हुए। वही नंगी तलवार लेकर के दरवाजा खटखटाया और उस वक्त में हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर की बहन और हजरत बहनों आपके जो बहनोई हैं हजरत सईद बिन जैद, उनको जो है कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाजे पर कुरान की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। हजरत खब्बाब घर के किसी एक हिस्से में जाकर के छुप गए। दरवाजा जैसे ही खुला तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आपकी बहन ने कहा नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम लोग ईमान ला चुके हो, मोहम्मद पर ईमान ला चुके हो, तुम कलमा पढ़ चुके हो और तुमने अपने दीन से बगावत की, अपने बुतों से बगावत कर दी है। उन्होंने पहले तो बात को टाला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा घूसा मारा कि आपका चेहरा लहू लहान हो गया। अपने बहनोई को भी मारा, अपनी बहन को भी मारा। जब निकल आया तो हजरत फारूक आजम की बहन फातिमा कहती हैं कि उमर, अब जब तुझे पता चल ही गया है कि हम ईमान ला चुके हैं तो याद कर ले, सुन ले कि हम ईमान ला चुके हैं और हमारे ईमान से हमें कोई मुनहरिफ करने वाला नहीं है। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन हम जो है लौट नहीं सकते, हम जो है इस्लाम के साथ बगावत नहीं कर सकते, हम जान तो दे सकते हैं। लिहाजा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये बात है, तो आपका गुस्सा जब ठंडा हुआ, खून देखा बहन का, तो चूंकि वो भी खून है, बहन का खून देखा तो ठंडे हुए और कहा कि अच्छा मुझे दिखाओ कि जो तुम पढ़ रहे थे वो क्या था। आपकी बहन ने कहा कि उमर तू नापाक है और कुरान पाक किताब है और नापाक लोग जो है कुरान को छू नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, जाकर के पहले गुस्ल कर। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद में कहा कि अच्छा लाओ अब मुझे वो किताब दो जो तुम पढ़ रहे थे। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को ला करके जो तिलावत कर रहे थे वो लाए और कुरान का वो हिस्सा सूरह ताहा जिसमें लिखा हुआ था इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री, ये आयत करीमा जब हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि यानी बेशक मैं अल्लाह हूं, इन्ननी अनल्लाह यानी मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना तो मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, फअबुदनी तो मेरी इबादत करो, व अकीमिस सलात लिज़िक्री और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो, यानी मैं ही हूं। लिहाजा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरी बहन तू मुझे मोहम्मद के पास ले चल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना कहा ना तो जो छुपे हुए थे हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला ने घर के हिस्से में, वो निकल करके बाहर आए और आकर के कहा कि उमर बिशारत हो, कल ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी जुमेरात को कि या अल्लाह अबू जहल यानी उमर बिन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, या अल्लाह जो उमर में और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो या अल्लाह उससे जो है इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। और क्योंकि सबसे पहले नाम जबान पर आपका आया था तो आपके हक में दुआ कबूल हो चुकी है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल कर ली। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, कहा कहां पर हैं? कहा हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मौजूद हैं। हुजूर इसी हालत में गए तलवार हाथ में और जाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। जब पहुंचते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन और उनकी तलवार पकड़ी और फरमाया कि उमर क्या ये फसाद तुम उस वक्त तक बर्पा करते रहोगे जब तक तुम पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत ना हो जाए, तब तक करते रहोगे? जब इतना सुनते ही हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मैं फसाद नहीं, मैं जिल्लत रुसवाई नहीं बल्कि कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ के आप जो है इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। जब इस्लाम में आप दाखिल हो गए तो उस वक्त में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पर नहीं है? क्या बिल्कुल हक पर हैं? क्या हमारा दीन हक नहीं है? क्या बिल्कुल हक है? क्या हमारी किताब हक नहीं है? क्या बिल्कुल हक पर है? क्या जब हम हक पर हैं, हमारी किताब हमारा दीन हक पर है, तो फिर हम चुप करके नमाज क्यों पढ़ें? अरे जो बातिल है, जो नाहक है, जो कुफ्र है
वो अलल ऐलान लोगों में जो है इबादत करता फिरता है, अलल ऐलान अपने बुतों को पूजता फिरे, अलल ऐलान सब कुछ करता फिरे, और जो हम हक पर हैं तो हम छुप करके नमाज क्यों पढ़ेंगे? अरे हम तो हक वाली जमात हैं, हम हक पर हैं तो हम छुप कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि या रसूलल्लाह आज हम अलल ऐलान जो है नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद हराम में जाएंगे। पहली मर्तबा उस वक्त में जब से इस्लाम की तबलीग की गई थी और जितने लोग मुसलमान हुए सबने अपने इस्लाम को छुपाया, मुसलमान होने को जाहिर नहीं किया, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम जब इस्लाम लेकर के आए तो डंके की चोट पे आपने जो है अपने आप को मुसलमान होना जाहिर किया और कहा या रसूलल्लाह जब हम मुसलमान हो गए हैं तो लिहाजा हम भी जो है हक के साथ में निकलेंगे। आप उस घर में निकले, दो सफ़ें आपने बनाई, एक सफ़ के आगे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरी सफ़ के आगे हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और दोनों जो है सफ़ के आगे तलवार लेकर के लहराते हुए निकलते हैं और कलमा पढ़ते हुए मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं। और कहते हैं मस्जिद हराम में जब दाखिल हुए कुफार कुरैश ने जब देखा कि एक सफ़ के आगे उमर, एक सफ़ के आगे हमजा हैं, लिहाजा उनके दिल जो है गम से भर जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि बताइए इतनी अजीम हस्ती, वो बहादुर जो है ईमान लेकर के आगे। पहली मर्तबा जो है हजरत उमर फारूक आजम ने कहा और हजरत उमर फारूक आजम और तमाम सहाबा मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए हैं। सुभान अल्लाह। उसी वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक का लक़ब अता फरमाया, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। उसी वक्त में हजरत उमर फारूक आजम लक़ब जो आपका पड़ा फारूक आजम, उसी वक्त में आपका पड़ा था कि हक और बातिल में फर्क करने वाला। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला क्योंकि जो है आपकी जो है 1 मुहर्रम को आपकी शहादत है, हमला आपको हुआ था 26 इसी महीने में ज़िलहिज्जा के आपके महीने में आप पर जो है हमला हुआ था, इसलिए आपका तज़किरा हो रहा है। पिछले जुमातुल मुबारक में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, तो तारीख याद रखा करो अपने बुजुर्गों की, इसलिए हम आपको ये चीजें याद दिलाते हैं, अपने बुजुर्गों की याद करते हैं और उनके दिनों में उनको याद किया करो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के वो चहीते सहाबी हैं कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। सुभान अल्लाह। फरमा कि उमर तो वो है कि जिस रास्ते से मेरा उमर जाता है उस रास्ते से शैतान जाता नहीं है, रास्ते से शैतान भी रास्ता बदल दिया करता है। सुभान अल्लाह। उमर का खौफ तो ये है। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौरे खिलाफत है आपका 24 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी, आधी दुनिया से भी ज्यादा, तकरीबन आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत। कैसर और किसरा जिसके नाम से कांपा करते थे, बड़े बड़े बादशाह जिसके नाम से कांपा करते थे। हजरत उमर फारूक आजम के दौर के अंदर जितनी फुतुहात हुई हैं और जितना इस्लाम को फैलाया गया, इस्लाम की सरहदों को फैलाया गया है ना, आपने वो कारनामे करके दिखाए जो किसी ने भी करके नहीं दिखाए। आज जो अदालतें हैं, जो कोर्ट कचहरियां हैं, जो सिपाही हैं, ये तमाम कारनामे किसने दिए? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए। जगह जगह चौकियां जो बनाई जाती हैं कि सिपाही रास्ते में थक जाते हैं, घोड़े बदलने पड़ते हैं, घोड़े कब तक चलेंगे, लिहाजा वहां से नया घोड़ा लीजिए, चौकियां लीजिए आराम करने के लिए। जगह जगह ये किसने बनवाए? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनवाए। तब से लेकर आज तक ये निजाम चला आ रहा है। सुभान अल्लाह।